वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर एफएनटी। यहाँ हम बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स और उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में। चाहे आप बिगनर हो या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की दुनिया का सफ़र। तो नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जस्ट हम लोग ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज प्रोटोकॉल। सो स्टैंडर्ड is a formally agreed upon a set of rules, guidelines, specification, or format that ensure consistency, compatibility, and quality across product systems or processes. अगर हम सिंपल भाषा में इसको देखें तो नीचे एक और वर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड और industry approved rules format that ensure devices from different vendor can work together seamlessly. Like different different vendors होते हैं, जैसे एच आई डी हो गया, एच आई डी का कार्ड जो कार्ड होता है वो किसी वेंडर के साथ, जैसे लिनल या जेनेटेक, किसी सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कर सके। जैसे आप लोग नॉर्मल देखते होंगे कि एक स्टैंडर्ड हम लोगों के पास सी टाइप केबल होता है चार्जिंग के लिए, वो कोई भी यूज कर सकता है किसी भी मोबाइल में। रियलमी मोबाइल, सैमसंग का चार्जर लग जाएगा, रियलमी का चार्जर सैमसंग में लग जाएगा, ठीक है। ऐसे अब मोटरोला का भी चार्जर, ये स्टैंडर्ड होता है जो डिफाइन होता है ताकि मार्केट में कोई मोनोपोली ना कर सके, ठीक है। ऐसे ही एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर दैट डिफाइन हाउ डेटा इज एक्सचेंज। मीन्स डेटा को एक्सचेंज कैसे करना है, ठीक है। एक डिवाइस से दूसरे सिस्टम, या डिवाइस टू डिवाइस या सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है। In simple terms, it's like a language that two devices use to understand each other and communicate effectively. Okay, like अगर दो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो दूसरा आपस में ये लोग कम्युनिकेट कर लेंगे प्रॉपरली, बट एक इंग्लिश बोलेगा एक फ्रेंच बोलेगा, दे कांट कम्युनिकेट ईच अदर। ओके, सो प्रोटोकॉल्स होना चाहिए कि एक इंग्लिश बोल रहा है दूसरा भी इंग्लिश बोलेगा, अगर दूसरा एक फ्रेंच बोल रहा है दूसरा भी फ्रेंच बोलेगा तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट कम्युनिकेशन मेथड, हाउ डेटा विल बी ट्रांसफर। ओके, next, understanding from this language, this example, think of a protocol like grammar and vocabulary of a language. If two people speak the same language, like same language means here protocol, they can understand each other. If not, communication fail even if they are both trying to talk. Okay, next slide. Why standard are required? Because interoperability. Okay, first one. Second, security compliance. Third, scalability and flexibility. Fourth, regulatory alignment. Okay, like interoperability means ensure device from different vendor can work together. Okay, example, OnWIF allow IP cameras and access control system to integrate. Okay, so this will integrate if OnWIF, if any camera have OnWIF, so this can be integrated with the access control system. Security compliance should be like enforces encryption, authentication, and audit requirement. For example, FIPS, there is a standard mandate secure identify verification for the federal system. This is related to only US region, okay, not for other like India and China and UAE. Not, it's only for FIPS is for US purpose only, US region. Scalability and flexibility enable system to grow and adapt without redesign. Means, for example, this is the standard ISO IEC 27 and 001 support modular security policy.
you have to follow this standard for scalability and flexibility. Next one, like regulatory alignment, like meets legal and industry specific mandates. Like example, healthcare system allow HIPAA aligned standards. So these are the standards why we are required. Like these are the things why we need a standard for to design the access control system. So next one is list of standard which we are using in access control. So we already discussed like some standard on VIF, IEEE, and like FIPS. So here some earlier standard are there like Vigend and Magstrip and proprietary format. Like in Vigend, these were earlier invented. और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये कुछ 1970 और 90s में ये आपका इन्वेंट हुआ था। तो ये केवल पैनल रीडर पैनल ओनली। यहाँ पे क्या है, कोई रीडर से जो कम्युनिकेशन हुआ सीधे पैनल में चला गया, वो कोई इनक्रिप्शन नहीं होता था। जो रीडर को डेटा मिला वही पैनल को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे चांस था कि भाई बीच में कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए या कोई डुप्लीकेट इसका कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉपर ये पुराना स्टैंडर्ड था, इसको अब हम लोग नहीं यूज करते हैं। कहीं कहीं इसको लीगेसी बोलते हैं, लीगेसी सिस्टम में पुराना सिस्टम है, बट इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ओएसडीपी में अभी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे नहीं करते हैं, अगर उनको चाहिए तो ये क्लाइंट बेसिस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मैग स्ट्रिप। मैग स्ट्रिप जैसे आप लोग एटीएम वगैरह देखे होंगे, वो पहले जो आता था मैग स्ट्रिप मैग्नेटिक बार होता था, तो उसके भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, आईएसओ आईसी 7811। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होते थे, लो ड्यूरेबिलिटी होता था, ये ज़्यादा दिन चलता नहीं था, ड्यूरेबल नहीं होता था, और इसके भी बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी ब्रीचेस होते थे। थर्ड क्या है कि तीसरा स्टैंडर्ड है प्रोप्राइटरी फॉर्मेट्स, लाइक एचआईडी, इंडाला, कुछ ऐसे वेंडर्स थे जो अपना सिस्टम डिजाइन करते थे, तो काफी इस पे वो होता था, मतलब मोनोपोली बेस्ड होता था कि ये वेंडर स्पेसिफिक, मतलब एचआईडी जो है, एचआईडी इस वेंडर के साथ ही काम करेगा, इस मैन्युफैक्चरर। लाइक एचआईडी जो है आशा एलबॉय और ये इनके साथ मतलब कंपेटिबल ना हो। ठीक है, ये नो इंटरऑपरेबिलिटी होता था, इसलिए हम लोगों ने अभी ये जो पहले अभी नेक्स्ट बैक स्लाइड में हम लोग देखा था कि पहला जो था इंटरऑपरेबिलिटी था, ऑपरेबिलिटी था। ठीक है, ताकि कंपेटिबिलिटी हो एक वेंडर जो बना रहा है दूसरे वेंडर के साथ। ठीक है, तो ये पहले के स्टैंडर्ड्स थे। अब जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है ये है ओएसडीपी हो गया, ओपन सुपरवाइज डिवाइस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, रीडर से कंट्रोलर के पास भी होता है, कंट्रोलर से रीडर के पास भी होता है। तो इनक्रिप्शन इनक्रिप्टेड वे में जाता है, ये डायरेक्ट डेटा नहीं जाता है। जैसे कि 1 2 यहाँ पे टाइप किया तो 1 2 कंट्रोलर को नहीं जाएगा, कंट्रोलर को 3 4 हो सकता है जाए, 5 6 हो सकता है, वो इनक्रिप्ट होकर के जाएगा। ठीक है, तो इनक्रिप्ट होता है तो वो डी इनक्रिप्ट करता है कंट्रोलर, फिर वहां से सिग्नल देता है कि हाँ डोर ओपन करो या क्लोज करो। ठीक है, ये सुपरवाइज्ड होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है हम लोग को। एक आईएसओ स्टैंडर्ड होता है, यही सेम आईएसओ आईईसी। ठीक है, 14 443 एंड 15693। सो कॉन्टेक्ट लेस स्मार्ट कार्ड्स के लिए एम आई फेयर एंड डेजी फेयर, डी एस फेयर। ये स्टैंडर्ड मॉडर्न अभी यूज होते हैं। ठीक है, और आई ट्रिपली ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आजकल के जितने भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो आईपी बेस्ड हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें जो भी स्विचेस के और उनके वाईफाई और कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनविफ। ऑनविफ इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं सीसीटीवी के साथ, तो सीसीटीवी का जो है वो ऑनविफ होना चाहिए। अगर कोई कैमरा ऑनविफ प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहा है तो वी कांट इंटीग्रेट विद द एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वन एफआईपीएस। सो यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात किया था कि एफआईपीएस जो है और पीआईबी यूएस गवर्नमेंट कार्ड इंटरऑपरेबिलिटी है कि ये वहाँ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाई प्रोटोकॉल्स आर रिक्वायर्ड। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्ड, अब प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स क्यों रिक्वायर्ड है। प्रोटोकॉल्स रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेंस के लिए,
real time control and integration with the IT systems. So reliable communication means define how devices exchange data. ठीक है, like data, how they will transfer the data, okay, format, timing and encryption. And like for example, OSDP supports secure supervised communication between reader and controllers. Next क्या है, security enforcement. So protocols include encryption, ऑथेंटिकेशन एंड टेम्पर डिटेक्शंस। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी एनफोर्समेंट के लिए ये प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जैसे कि रेडियस इंश्योर सिक्योर लॉग इन फॉर द नेटवर्क एक्सेस। नेक्स्ट वन, रियल टाइम कंट्रोल लाइक एनेबल लाइव मॉनिटर, रिमोट कमांड एंड अलर्ट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी वही हैं जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं। ओएसडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, डोर मॉनिटर करता है कि ये ओपन है या क्लोज है, रियल टाइम मॉनिटर करता है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन विद आईटी सिस्टम्स लाइक प्रोटोकॉल्स लाइक एलडीएपी, एसएएमएल and auth connect ACS to enterprise directories and cloud space, cloud apps. For example, SAML enable single sign-on across the web platform. So ये just related to login and IT related communication protocols को follow करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है, ये हम लोग कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो यूज करते हैं एक्सेस कंट्रोल में। तो ये सब वही स्टैंडर्ड जैसे हैं, वो प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। जैसे जैसे वीकेंड है, तो इसमें कैसे होता है, वीकेंड में केवल जो डेटा हम लोग देते थे वही जाता था, जैसे 0 1 में ही फॉर्म में जाता है, नो इंक्रिप्शन होता है, कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप में क्या होता है, मैग स्ट्रिप में इसमें क्लॉक और डेटा होता है, मतलब डाटा, उसमें जो भी अब डेटा रहेगा वो जस्ट उसको ब्रीच कर सकते हो। ठीक है, ये पुराने प्रोटोकॉल्स हैं। और RS232 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कनेक्टिविटी लाइक फ्रॉम एक रीडर से दूसरे रीडर्स, एक कंट्रोलर से एक ही रीडर में जाएगा, इस कंट्रोलर से उसी रीडर में जाएगा, पर्टिकुलर रीडर में। ऐसा नहीं है कि RS485 की तरह नहीं है कि एक कंट्रोलर से जो रीडर उसमें जा रहा है उसी केबल को हम एक्सटेंड करके मतलब दूसरे रीडर में ले जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग पॉइंट वहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न स्टैंडर्ड, ये OSDP ओवर RS485, सो सिक्योर एंड सुपरवाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए होता है। TCP/IP इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल, बेस्ड कंट्रोलर्स लाइक ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल and internet protocol. ठीक है, HTTPS and MQTT and WebSocket, this is for IT related. And BLE, this and NFS, this is for mobile credentials. Okay, next one is BSE net and Modbus and KNX, this is also required for the BMS integration whenever you are going to integrate with the BMS. Next one, we are going to learn comparison of standards and protocols like। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ जनरेशन्स हैं, जैसे जैसे हम लोग मूव ऑन करते गए और उसके बारे में हम लोग कुछ अपडेट आता गया हम लोग स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स में, और इसके सिविरिटी क्या है, मतलब क्या मतलब सिक्योरिटी कैसा है और स्टेटस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला जो हम लोग यूज करते थे 90s में, 1970 से 90s तक, वो वीकेंड और मैगस्ट्रिप यूज करते थे। यहाँ पे क्या होता था, इसके जो वायर्स होते थे वो, और कम्युनिकेशन होता था वो कॉपर्स वायर के थ्रू होता था, और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता था, मतलब बहुत इजी, जस्ट कोई भी ब्रीच कर सकता था, ये बहुत इजी था। तो इसको हम लोग इसको एब्सोल्यूट कर दिया गया है, इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वीकेंड कार्ड ऐसे होते थे, ये 70 से 980 तक यूज होता था। और नेक्स्ट जो है आपका प्रोप्राइटरी कार्ड्स होते थे, जैसे हम लोग इंडाला और HID में देखे कि जो काफी मोनोपोली था उसमें, ताकि मतलब दूसरा वेंडर नहीं यूज कर सकता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। तो इसमें क्या था कि सीरियल बेस्ड कम्युनिकेशन होता था। ओके, एंड
232 का यूज होता था और वीक सिक्योरिटी होती थी, डिक्लाइन हो गया, मतलब इसको बंद कर दिया गया, इसको यूज नहीं करना है क्योंकि मोनोपोली नहीं कर सकता है कोई भी मार्केट में। उसके बाद आया ओएसडीपी। ओएसडीपी का जो इन्वेंशन हुआ था 2011 में मार्केट में आ चुका था ये। और एम आई फेयर एंड डीईएस फायर ये हम लोग यूज करते हैं करंट में, क्योंकि ये जो है अभी RS-485 और आईपी बेस्ड होते हैं, और ये आगे आगे भी यूज होगा क्योंकि ये आईपी बेस्ड है, ठीक है। और इसका जो सिक्योरिटी है काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि इसमें डेटा इंक्रिप्शन होता है, इनक्रिप्टेड होकर के डेटा कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर भी उसको सुपरवाइज करके रीडर को सिग्नल देता है, और वहाँ पे मॉनिटरिंग भी होती है कि भाई डोर ओपन है या क्लोज है, करंट स्टेटस भी दिखाता है। और ये जो है अभी देखो आप यहाँ पे बार कोड कैसे ये दिखते थे, ये बार कोड वाले कार्ड होते थे, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड, ये RFID वाले कार्ड्स है, ये स्मार्ट कार्ड है जो यहाँ पे ये एम आई फेयर OSDP में यूज होता है। नेक्स्ट क्या है कि ये फ्यूचर है, मतलब अभी करंट में यूज भी होता है, जैसे ब्लूटूथ और मोबाइल क्रेडेंशियल्स वाले OSDP सिक्योर और क्लाउड बेस्ड ये यूज हो रहे हैं अभी। अभी तो 2025 चल रहा है तो यूज स्टार्ट हो गया है इसका यूजिंग, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स थे, मतलब, और प्रोटोकॉल्स, इसके कुछ कंपैरिजन थे कि क्या अभी यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, उसका कैसा, मतलब अभी करंट में उसकी सिक्योरिटी कैसी थी, तो हमें लगता है इसका कुछ आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स। हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ लिया, स्टैंडर्ड पढ़ लिया, उसके कंपैरिजन पढ़ लिए, अब कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ इसके डेफिनेशंस क्या होता है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। स्टैंडर्ड्स मींस अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स, फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस एग्रीड अपॉन बाय द इंडस्ट्री बॉडी। प्रोटोकॉल सेम लाइक a technical method or procedure for communication between the devices। जस्ट इसको बहुत ही क्लियरली समझना आप लोग, स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स में बहुत बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में है कि ये सेट ऑफ रूल्स है कि, और फॉर्मेट्स हैं, गाइडलाइंस है कि कैसे डिवाइस को मैन्युफैक्चर करना है कि कंपेटिबिलिटी के लिए, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, और इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड है, डेटा ट्रांसफर रिलेटेड है प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, पर्पज इंश्योर कंपेटिबिलिटी। ये क्यों यूज कर, स्टैंडर्ड क्यों होता है, क्योंकि कंपेटिबल डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कंपेटिबिलिटी हो, कंप्लायंस मैच करे अक्रॉस द सिस्टम्स, ठीक है। और प्रोटोकॉल्स क्या होता है, एनेबल डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा रिलायबली एंड सिक्योरली। इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग, रीडर टू कंट्रोलर या रीडर कंट्रोलर टू, जो हम सिग्नल देते हैं डोर कॉन्टेक्ट को या लॉक को, हार्डवेयर लॉकिंग डिवाइसेस को या रेक्समोशन को, वो सिक्योर हो, उसका जो डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, मतलब, ठीक है। इसका स्कोप क्या था, मतलब ब्रॉड कवर डिजाइन, ओके, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंप्लायंस, यही मेन मेन रीजन था, ठीक है। और इसका था कि स्पेसिफिक फोकस ऑन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ISO होता है, IEC होता है, FIPS होता है, ऑनवीफ होना चाहिए, IEC होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है प्रोटोकॉल्स, OSDP, विगेंड, LDAP, ये ऑथेंटिकेशन रिलेटेड है, ये रेडियस, ये IT रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखो स्टैंड एग्जाम्पल क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको एक आर्किटेक्चर है सिंपल, अब यहाँ से आपको बताते हैं कि क्या है। ये आप देख सकते हो ऊपर जो है IP नेटवर्क है, ये जस्ट कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है, ठीक है। ये ऊपर का जो है पार्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है। बट इफ यू विल गो डाउन बिलो, you will see a IP network here, okay। In this first manufacturer is there, HID, yeah, Vortex controller. Then second one is Mercury controller.
Next, third one is Azure controller, Suprema controllers. These are four controllers, and these can be work with anyone, any reader. Like this can be work with HID reader as well. This can be work with STID reader. This can be work with Suprema reader. This can be work with UHF reader, and this can work with this Stan lock as well. This is locking hardware. So like same like this Mercury panel controller can work with all these readers separately. Okay, and this Azure will also work with through the RS485. This can be communicate like there is no monopoly like HID will only work with HID can work with state reader, HID can work with Suprema reader, HID can work with UHF reader. Got it? So here by standard there is a there like there is monopoly, chance of monopoly, so that is absolute. There will be no monopoly to communicate. So this is called standard, like one device can be compatible with another manufacturer device. Correct. So next one, what is the future trend in access control system? So access control is already it in itself a future, and we are using access control system since 40 50 years ago. So again, this will be very crucial part of our life to secure life and make a future good. Okay, so full cloud native platform, like access control will be fully cloud based. Okay, mobile first credential, like we'll use only NFC and Bluetooth only. AI ML based access and threat detections. Okay, stronger encryption and privacy compliance, integration with IoT and smart buildings, on with BSC net interoperability across security systems. like जो भी systems हैं सब में interoperability स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट जो है, दैट्स इट. थैंक यू सो मच टू स्टे हियर, and we'll meet in next videos. There are lots of video will come. I am working on this and will try. I am trying to serve you much more better and better. Okay, so thank you so much. Bye bye.